Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता. हालेलुया. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन आपने फिर से मौका दिया परमेश्वर कि आपके वचन को प्रभु लेकर प्रभु आपके लोगों तक आ सके परमेश्वर. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, oh God. La barala hasholobo, nebele handorolo ho shabariastorolo. Rakona la handia nele babashiar haustere, nerele ho shalabo nabali androlobo. Praise the Lord, Brother Elia. Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Jyoti. Praise the Lord, Sister Jyoti and family. Praise the Lord. Praise the Lord, Sahida. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए हम कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे कुछ समय, so that the word of God may be, our spirit, our heart, our mind be open for the word of God. Oh, rebebe shara hastolo ho konolo hondre, rehe benele habalahandoro ho shelebeni andoro bo, rehe kelebeni andoro ho shabalaha selebe, rehe keni andoro ho shalabari andoro bo. Hello, Brother Vikram. Praise the Lord. Praise the Lord. Reke bele he shelebeni andro, rehe nele habalaha sholo hondoro. Rihandolo nalaha shialabo rabanele, selehe ke rihandoro lohona laha shalaba, rabalahandoro lohona laha shelebe, rehebe sheriandoro loho selebe lialahorbo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh Lord, thank you. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हमारे जीवनों के लिए. हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए जो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, इन कठिन समयों में परमेश्वर आपने अपने लोगों को संभाला है परमेश्वर. और पिछले साल में 2020 में जो कुछ भी हुआ
उस सब परिस्थितियों में परमेश्वर आपने अपने लोगों को संभाला है। चाहे हम परमेश्वर इस दुनिया में, इस विश्व में, हमारे पूरे देश में कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी थे, किसी भी परिस्थिति में थे, लेकिन परमेश्वर आज के दिन अगर हम जिंदा हैं और जीवित पाए जाते, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जिंदा हैं आज, इफ यू आर अलाइव टुडे, यू मस्ट प्रेज गॉड, यू मस्ट गिव ग्लोरी टू लॉर्ड, यू मस्ट ग्लोरीफाई द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस, यू आर अलाइव टुडे। बिकॉज ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस यू आर अलाइव टुडे। अगर वो नहीं चाहता कि आप जीवित रहें, तो आप सचमुच इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते। जैसे ना जाने कितने हजारों या लाखों, मैं यूं कहूंगा, इस दुनिया को छोड़कर पूरे विश्व में से चले गए। एंड इफ यू आर अलाइव टुडे, आई वांट टू टेल यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू आर अलाइव टुडे, it is just completely just because of the grace of God. You have not done anything which is worthy to live. You have not done anything, though you are a believer or not. If you believe in Jesus Christ or you don't believe in Jesus Christ, it doesn't matter. But you have not done anything to live today. If you are alive today, I'm telling you, my dear brothers and sisters, it is just completely because of the grace of God over your life. Complete grace of God. If I am alive today, if my family is alive today, everyone, people are around you, आपके फैमिली मेंबर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चर्च के लोग, if we are alive today, it is just because of the grace we have received through Christ our Lord Jesus Christ. Just because of grace, just because of his love, just because of his mercy over our lives, because we have not done anything good to live, to be alive in this world. We have not done anything. आप मुझे कोई एक काम लिखकर यहां पे बता दीजिए जिसके कारण परमेश्वर कहे कि तू जिंदा रहे। कोई एक ऐसा काम जो आपने किया हो और परमेश्वर कहे कि हां यार, ये काम तूने ऐसा किया है ना, इस वजह से मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। नहीं, there is nothing that you have done. There is nothing that I have done for God, for God's kingdom. But it is just completely because his love, his mercy, his grace over our lives that we are alive today. Amen. Praise God. Wherever you are, just say thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, that we are alive. हम मर नहीं गए, हम नाश नहीं हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है ना, लेमेंटेशन, विलाप गीत में 3 अध्याय के 22वें 23वें वचन में, हम नाश नहीं हो गए। ये उसकी महान करुणा का प्रतिफल है। उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे लिए नई होती जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस you are alive. Just because of his grace you are eating food. Just because of his grace your body is still working. Just because of your grace, God's grace, you are at home, not in the hospital or clinic. Just because of his grace and mercy and love, you are enjoying the presence of God. Just because of his grace we can attend the church today. Just because of his grace your children are studying today. Just because of his grace you are paying the rent, you are eating food, you are wearing clothes. Just because of his grace, not because something you have done for God, but God is doing everything for you. God is doing everything for you. Amen. Hallelujah. Wherever you are, आप जहां कहीं भी हैं, क्या हम एक बार उसके लिए ताली बजा सकते हैं? उस प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या हम एक बार ताली बजा सकते हैं? जहां पे भी आप हैं, आप मार्केट में, घर में, दुकान में, जहां पे भी, मॉल में, एक बार ताली बजा दीजिए यीशु मसीह के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आई एम अलाइव टुडे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूं कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना जीवित है। लॉर्ड, आई थैंक यू दैट मी एंड माय फैमिली एंड माय चिल्ड्रन एंड माय पेरेंट्स, we are alive today.
And there is nothing that we have done anything for this life, but this is just because of your grace. Amen. So मैं थैंक यू बोलता हूं आप सबके लिए और जितने भी इस समय के बाद देखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं, जीवित हैं, आपके परिवार में सब लोग ठीक हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद इवन मैं लाइव आया हूं और यू वोंट बिलीव, मैं लाइव आने का प्रोसीजर भूल गया था कि लाइव आते कैसे हैं। फिर मैंने सोचा बैठकर कि कैसे लाइव आते थे पहले, एंड देन आई केम। मैं लाइव आने का प्रोसीजर ही भूल गया था, इतने समय से मैं लाइव नहीं आया और सिर्फ YouTube पे वीडियो डाल रहा था। अभी 2 महीने से YouTube पर भी मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। गॉड वॉज नॉट लीडिंग मी टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, सो आई वॉज जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, पर्सनल टाइम, टाइम विद फैमिली, टाइम विद गॉड। आमेन। जब परमेश्वर आपको कहे चले तो चल पड़े, जब कहे दौड़े तो दौड़े, जब कहे उड़े तो उड़े, जब कहे रुके तो रुक जाइए, जब कहे बैठ जाए तो बैठ जाइए, जब कहे लेट जाओ लेट जाइए, कुछ मत करिए। He will do everything for you। आप सिर्फ उसकी सुनिए और वो करिए जो वो कहता है। Amen। So मैं पिछले दिनों की कुछ बात बताना चाहूंगा। पिछले दिनों ओके, आप सब मुझे जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी वॉल पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सो दैट दूसरे लोग भी देख सकें और ब्लेस हो सकें। और दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को YouTube पर है पास्टर तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशन के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग आने वाले दिनों में उन संदेशों के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं और परमेश्वर मुझे दे रहे हैं, मैं उनको वीडियो बना के डाल सकूं और आप लोग सब देख सकें और ब्लेस हो सकें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ बहुत जल्दी या तो बंद हो जाएगा या आपको पैसा पे करना पड़ेगा इसका। Either it will be shut down or you have to pay, और कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज रहेंगी। लेकिन जब तक ये फैसिलिटी हमारे पास है, let us glorify the Lord, let us glorify the Lord, हालेलुया। जब तक ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है कि हम इस प्रकार से लाइव आकर वचन को सुन सकें, जरूर सुनिए। जब तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम YouTube से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए, कर लीजिए। जितने वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जितनों को सुसमाचार सुना सकते हैं सुना दीजिए। बहुत जल्दी हो सकता है कि ये सब चीजें रुक जाए या आपको पैसा पे करना पड़े या इस तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट्स वहां पे अवेलेबल ना हो, स्पेशली क्रिश्चियंस। So it is better, just fill yourself with the word of God as much as you can, as much as you can. Read, meditate, watch and share the word with the people. Amen। So मैं बताना चाहता हूं, जनवरी, जो पिछला जनवरी निकला, मेरे लिए बहुत स्ट्रगलफुल था, क्योंकि दिसंबर आखिरी 2 दिनों में मेरे को थोड़ा सा कफ कोल्ड हुआ और मैंने एक मेडिकल स्टोर पर जाकर ले लिया और उसका नाम था नाइसिप, जो कि बैन है पूरी तरह से। और उस मेडिसिन को लेने के बाद मेरे अंदर जो भी कफ था सब फ्रीज हो गया। देयर वॉज नो टेस्ट, नो स्मेल। मैं इस रूम में तकरीबन 16-17 दिन रहा। आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग। I was feeling like, what happened to me? क्या ये कोरोना है, क्या है? और फिर एक हमारे दीदी हैं पंजाब में, मैंने उनसे पूछा, वो उनकी कोविड वार्ड में ड्यूटी लगी थी एक बार, वो नर्स हैं। उन्होंने बोला कि नहीं तरुण, ये कोरोना नहीं है, लेकिन ये फ्रीज हो गया अंदर। तो उन्होंने मुझे कैप्सूल बताया और मैंने उसको स्टीम लिया और थोड़ा सा मुझे रिकवर हुआ और धीरे धीरे करते करते मुझे रिकवर होने में तकरीबन 30 से 35 दिन लग गए। यू नो, इन ऑल दोज डेज, उन सब दिनों में मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था, एक कुछ अजीब सी फीलिंग थी कि मेरे साथ क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा बेटा मेरे साथ आना चाहता है
लेकिन वो नहीं, मैं उसको अलाउ नहीं कर रहा हूं, वो रो रहा है। मैं मेरी वाइफ के साथ नहीं बैठ पा रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूं। मुझे एक भय है अंदर से। आप कहेंगे कि एक परमेश्वर के दास होने के बाद भी आपको डर था। हम इंसान भी हैं और बहुत से विचार आते हैं, लेकिन जब मैं अकेला इस रूम में था, परमेश्वर और शैतान दोनों तरफ मेरे से बात कर रहे थे। जिस घड़ी आप कंफ्यूज होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप डरते हैं, शैतान को पूरा मौका मिलता है। और सबसे पहले जानते हैं हम क्या करते हैं? जब कुछ भी ऐसा होता है, हम ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसको उठाते हैं, इसको उठाकर देखना शुरू करते हैं सिम्टम्स ऑफ कोरोना। मैंने भी किया, सिम्टम्स ऑफ कोरोना। ना जाने कितनी वेबसाइट्स पर मैंने देखा सिम्टम्स ऑफ कोरोना, और उसमें लिखा हुआ था हर एक वेबसाइट में कुछ अलग अलग तरह की सिम्टम्स। और मैं अपने आप को चेक कर रहा था, कहीं ये तो मुझे नहीं है, ऐसा तो नहीं है मेरे साथ, वैसा तो नहीं है मेरे साथ। और इन सब के चलते एक तरफ परमेश्वर मुझे शांति दे रहे थे कि तरुण जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन दूसरी ओर जब मैं फेसबुक पर या गूगल पर इन सब चीजों को पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर एक डर, एक भय, एक विचारधारा उत्पन्न हो रही थी कि कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। फैमिली के बारे में, जब हमारे जीवन में स्ट्रगल्स आती हैं, कुछ ऐसा आजकल जैसा चल रहा है कोरोना का, जब ऐसी कुछ बातें रहती हैं, तो हमें वो कब्र के ऊपर लगा हुआ, कब्रिस्तान में जो पत्थर लगा रहता है, उसके ऊपर नाम लिखा रहता है, वो दिखने लगता है अपने आप। एक भय का माहौल बन जाता है। लेकिन मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा 3 चीजों को आप पर प्रकट करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। आमीन। आइए एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। और पिता, हमारी प्रार्थना है पिता, अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। एंड लॉर्ड, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, एवरीवन दोज आर वाचिंग, let them feel your presence right now, God. Let them feel, Lord, I release your presence, oh God. I just speak your presence over your people, oh God. And Lord, let them be blessed by your word today. Let their heart be open to receive your word. Let their ears be open to listen your word, oh Lord. We bless every one of them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. हालेलुया। आप मेरे साथ देख सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है इस समय, आप मेरे साथ बाइबल में देख सकते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय। इसके ऊपर मैंने मरकुस 5वें अध्याय में से मैंने बहुत सी चीजों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, और मैं उनमें से एक चीज आपके साथ आज बांटने जा रहा हूं। मरकुस 5वें अध्याय में 3 कहानियां हैं, समझिएगा। मरकुस 5वें अध्याय में 3 कहानियां हैं। आप जानते हैं, हम 3 चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं। 3 चीजों से। पहला, दुष्ट आत्मा, भूत, प्रेत, जादू टोना, ही या हू, इन सब चीजों से मैं नहीं डरता, बहुत से लोग डरते हैं। फिर दूसरी चीज, डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो सालों साल चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है। लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होती। लोग दवाइयां लेते हैं, लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो बीमारियां खत्म नहीं होती। स्ट्रगल करते हैं उनसे। कभी किसी से प्रार्थना कराओ, कभी किसी से प्रार्थना करो, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, बहुत सी चीजें, लेकिन वो चीज हटती नहीं है, वो डिजीज। हो सकता है आप ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसी बीमारियों से, ऐसी तकलीफों से गुजर रहे हो कभी। फिर तीसरी चीज है मृत्यु, मौत। हम मौत से बहुत डरते हैं। आप जानते हैं, आप कोरोना से नहीं डरते। इस पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बुखार से डरे। इस पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो खांसी या जुकाम से डरे। है क्या? क्या आप खांसी जुकाम से डरे हैं कभी? अच्छी, और लोग दूर भाग गए। आपने खांस दिया और लोग दूर भाग गए। आपने जस्ट ऐसे ही बोल दिया, यार कुछ सही सा नहीं लग रहा आज, और लोग थोड़ा सा दूर हो गए आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ कि
कि आप सिर्फ एक बीमारी से, एक जुकाम से डरते हो, आप खांसी से डरते हो, आप बुखार से डरते हो? क्या कभी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। हम बीमारियों से नहीं डरते, हम मौत से डरते हैं। हम मौत से डरते हैं। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ ये होता कि कोरोना वायरस फैला है और लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, तो आप और मैं कहते हैं अबे हट यार, क्या खांसी जुकाम से भी कोई डरता है क्या? हटा, क्या डरे इससे? लेकिन जब पता लगा कि इतने लोग मर रहे हैं, इटली में, चाइना में, अमेरिका में, यहां वहां इतने लोग मर रहे हैं, हर चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे आज इतने लोग मरे, आज इतने बीमार हुए, आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो हमारे सामने पता है क्या पिक्चर आती है? मौत। तो 3 चीजें, पहली दुष्ट आत्मा, दूसरी बीमारी और तीसरी मौत। इस मरकुस 5वें चैप्टर में, इस 5वें अध्याय में ये 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इन 3 चीजों को खत्म करने के लिए 3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन तीनों बातों को खत्म करने के लिए सेम एक ही यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे डिजीज हो, चाहे मौत हो, इन तीनों को फेस करने के लिए, इन तीनों को डिफीट करने के लिए, इन तीनों को खत्म करने के लिए एकमात्र यीशु मसीह, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। किसी और के पास भागने की जरूरत ही नहीं, किसी और का थोबड़ा, किसी और का चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं। यीशु मसीह काफी है। क्राइस्ट इज इनफ फॉर मी। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं हैं तो यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगी। बीमारियां हैं, डिजीज हैं, तो यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां हो जाएंगी। और अगर मृत्यु है तो परमेश्वर उस मृत्यु को भी जीवन में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के उस देश में पहुंचे और झील से जब बाहर निकले तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसमें 6000 कितनी 6,000 दुष्ट आत्माएं थी। उन 6000 दुष्ट आत्माओं को, उस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा और वो व्यक्ति यीशु मसीह की तरफ दौड़ा आया, जब वो यीशु मसीह की तरफ दौड़कर आया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कमांड किया उन दुष्ट आत्माओं को कि उनमें से निकल जाओ, और वो निकल गई। और कहां गई? सुअरों के बीच में। और सुअर कितने थे? 2000। मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक सुअर में 3 दुष्ट आत्माएं। सोचिए, एक सुअर 3 दुष्ट आत्माओं को नहीं झेल सका, लेकिन एक व्यक्ति 6000 दुष्ट आत्माओं को लेकर घूम रहा था। एक सुअर 3 दुष्ट आत्माओं को नहीं झेल सका, लेकिन एक व्यक्ति 6000 दुष्ट आत्माओं को झेल रहा था, है ना। फिर दूसरा पोर्शन हम देखते हैं। दूसरा पोर्शन है एक स्त्री का। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। फिर दूसरा पोर्शन है एक स्त्री का, लेकिन उससे पहले दूसरा पोर्शन जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है जायर के बारे में। यायर जिसकी बेटी मरने पर थी, वो यायर यीशु मसीह के पास आता है। अगर आप देखेंगे 21 से 23वें वचन के बीच में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस 5वां अध्याय उसके 21 वचन से 23-24 वचन तक लिखा है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वो यायर जो आराधनालय का सरदार था, वो उसके पैरों पर गिरा और कहता है, प्लीज मेरे साथ चल, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मरी नहीं थी। जब तक यायर यीशु मसीह के पास आता है तब तक उसकी बेटी मरी नहीं थी। वो चला है, वो आया उसके पास, कहता है, चल मेरे साथ, मेरी बेटी मरने पर है, चल, और अपना हाथ उस पर रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम जीवित रहें तो चंगे होकर जीवित रहें। हालेलुया। हम बीमार रहकर जीवित नहीं रहना चाहते प्रभु। परमेश्वर का वचन बताता प्रियो कि उसने कहा कि तू चल मेरे साथ कि मेरी बेटी चंगी होकर जीवित रहे। इट इज नॉट अबाउट टू बीइंग अलाइव। ये सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, ये चंगे होकर जीवित रहने की बात है। आज जितने हॉस्पिटल्स में हैं, क्लिनिक्स में हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, क्या सब चंगे हैं? नहीं, बीमार, एक्सीडेंटल और ना जाने कितनी कितनी तकलीफों को फेस करते हुए जीवित हैं, लेकिन बहुत तकलीफों में रहकर जीवित हैं। लेकिन आप प्रार्थना करिए अपने और अपने परिवार के लिए, प्रभु कि मैं और मेरा परिवार चंगा रहकर जीवित रहे, मेरे बच्चे चंगे रहकर जीवित रहे, मेरे माँ बाप चंगे रहकर जीवित रहे। हालेलुया। जितने भी साल, जितने भी समय जीवित रहे, लेकिन चंगे रहकर, बीमार रहकर नहीं। हालेलुया। ओके, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, यस पास्टर वी आर लर्निंग समथिंग। इफ यू हैव लर्न दिस वन, if you are learning something, if you are receiving something, if you feel that God is talking to you today, just say amen, just praise the Lord that you are receiving something from the word of God. Okay, so याईर प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलता है। और अगर आप ध्यान से इस स्टोरी को समझेंगे कि कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है बाइबल में जहां पर एक स्टोरी चल रही है और अचानक उसमें बीच में एक और स्टोरी जुड़ जाए। यहां पर याईर प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलता है, लेकिन अचानक से एक स्त्री आती है। और वो स्त्री कौन है? जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है। तो अगर आप इस पूरी पिक्चर को समझेंगे ना, इस पूरी पिक्चर को समझेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी, वो ये है, ये एक मसीह जीवन की पिक्चर है। ये एक ऐसे जीवन की पिक्चर है जहां पे आप मसीह को साथ लेकर चलते हैं, जहां पे आप मसीह को साथ लेकर चलते हैं, जहां पे आप मसीह को छोड़कर नहीं चलते, जहां पे हम मसीह को कहते हैं मेरे साथ चल। और याईर ने प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चलना शुरू किया। और अचानक से एक स्त्री आती है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है। इसके पीछे एक अलग प्रकाशन है, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगा। लेकिन वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और चंगी हो जाती है। आप समझते हैं इस बात को? क्या है इसका मतलब? आप जब यीशु मसीह को साथ लेकर चलेंगे अपने आप रास्ते में ही चिन्ह चमत्कार होते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया। जब आप मसीह को अपने साथ लेकर चलेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपने घर पर अपने गले में लॉकेट बनाकर या किसी मूर्ति में टांग कर छोड़कर नहीं चलेंगे ना, आप साथ में लेके चलेंगे मसीह को, तो आप चिन्ह चमत्कार रास्ते में ही देखने पाएंगे। हालेलुया। वो रास्ते में ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है अभी तक। जानते हैं बाइबल क्या बताना चाहती है? कि तुम जिसको लेकर चल रहे हो ना, वो सही व्यक्ति है। तुम जिसको लेकर चल रहे हो, मतलब याईर यीशु मसीह के पास आ तो गया, उसने सुना होगा यीशु मसीह के बारे में कि अच्छा ऐसा होता है, चंगाइयां होती हैं, मिरेकल्स होते हैं। और जब उसको मौका मिला प्रभु यीशु मसीह के पास आने का, तो वो आया, उसके पैरों पर गिरा और अपनी बेटी के पास लेकर जाने को है। वो रास्ते में है। इट इज ऑल अबाउट जर्नी, अ क्रिश्चियन लाइफ जर्नी। इट इज ऑल अबाउट जर्नी विथ क्राइस्ट। ये सिर्फ मसीह को लेकर चलने का जीवन का बात है कि जब आप मसीह को लेकर चलते हैं तो आप रास्ते में ही चमत्कार होते देखते हैं। अभी जर्नी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप रास्ते में ही उन चिन्ह चमत्कारों को देखना शुरू कर देंगे। अगर आप मसीह का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे, प्लीज मेरे साथ चल। आप अपने किचन में आप यीशु मसीह को कहिए, प्रभु मेरे साथ चलिए, मैं सब्जी बनाने लगी हूं, मैं ये काम करने लगा। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, आप कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चलिए। आप मार्केट जा रहे हैं, आप कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चलिए। यू नेवर नो कि जो चीज आप 2000 में खरीदने जा रहे हैं, वहां पर सेल लगवा दे परमेश्वर और वो आपको सस्ते में मिल जाए। यू नेवर नो। हालेलुया। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको मिल जाए, वो कहे कि मैं आपके लिए पैसे पे कर देता हूं, मेरी तरफ से आप गिफ्ट रख लीजिए। यू नेवर नो। जब आप मसीह को लेकर जाएंगे साथ में, रास्ते में चमत्कार होते दिखाई देंगे।
हालेलुया, मैंने देखा है, मैंने देखा है। इसीलिए इस हंसी के साथ, इस खुशी के साथ इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। आई हैव सीन दोस मिरेकल्स व्हेन पीपल से ओके आप ले लीजिए, आई विल पे फॉर यू। मसीह को साथ लेके जाइए। और याईर प्रभु मसीह को साथ लेके जा रहा था। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी तक याईर की बेटी मरी नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक बात पर ध्यान दीजिए। मेरे साथ पढ़िए 35 वचन, मरकुस 5वां अध्याय 35 वचन। लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है? मैं अभी तक अपने संदेश पर नहीं आया हूं। लोग आए और लोग कहते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है ना? तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? आप जानते हैं, हमारे चारों तरफ के लोग हैं ना, जो वो हमें डिस्करेज करते हैं। जो हमारे चारों तरफ के लोग हैं, मे बी योर रिलेटिव्स, मे बी योर फ्रेंड सर्कल, मे बी डॉक्टर्स, मे बी डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स कहती हैं, रिपोर्ट्स कि ये देख, ये तो मर गया है, ये तो किसी काम का नहीं रहा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारा शुगर, तुम्हारा ये वो सब बढ़ गया है, कुछ कम हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया है। इसी तरह से उन लोगों ने आकर याईर को बोलना शुरू किया कि तेरी बेटी मर गई है। द मोस्ट डिस्करेजिंग वर्ड। आप यीशु को साथ लेकर जा रहे हैं, आप मसीह के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, अचानक एक रिपोर्ट आती है, अरे इनको तो कोरोना पॉजिटिव हो गया। आप कहें, हे मैं तो प्रभु के साथ चलता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना में समय बिताता हूं, प्रभु फिर मेरे साथ क्यों हो गया? क्योंकि वो आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो एक बड़ा चमत्कार आपको दिखाना चाहता है। बिना डैनियल के उस शेरों की मांद में जाए बिना, डैनियल की पुस्तक में वो 12 चैप्टर में उसकी कहानी नहीं छपती। बिना उस आग के उस फर्नेस में जाए बिना, उस भट्टी में जाए बिना, शद्रक मेशक अबेदनगो के नाम नहीं होते। बिना समुद्र को 2 भाग किए मूसा का नाम नहीं होता। बिना उन लाखों लोगों को छुड़ाए मूसा का नाम नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करे, तो अगर आपके जीवन में स्ट्रगल आ रही हैं, उस सारी स्ट्रगल में, उन सारी प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह को छोड़िए मत। उन लोगों ने यीशु मसीह सामने आकर याईर को बोला कि अब गुरु को क्यों दुख दे रहा है? छोड़ दे, शैतान हमारे कान में बोलता है, अब तो तुम्हारा कोई हालात ठीक नहीं हो रहे, छोड़ दे यीशु मसीह को यार, तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल रही, छोड़ना यीशु मसीह को। क्या फायदा हुआ तेरे को चर्च जाके? क्या मिल गया चर्च जाके? बता ना मेरे को, क्या फायदा हुआ बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके? तेरे खुद के तो हालात नहीं बदल रहे। तेरी बेटी वहां पर मर गई है, तुम्हारी खुद की नौकरी छूट गई है, क्या तू दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है? तुम्हारे घर के खुद के मेंबर तो ठीक नहीं हो रहे बीमारी से, तू मुझे क्या बता रहा है यार कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है? ये शैतान बोलता है कान में। आपके साथ चलने का कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है, फालतू है सब, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को, कोई चंगाई वंगाई नहीं होती। यीशु मसीह कोई चंगा वंगा नहीं करता है। यही बताना चाहता है वो, हमको डिस्करेज करना चाहता है। वो चाहता है कि यीशु को हम छोड़ दें, यीशु को हम जाने दें, यीशु के साथ हम कोई वास्ता ना रखें, यीशु को अपने घर ना लेके जाएं, यीशु के साथ वो संगति ना करें, ना हम प्रार्थना करें, ना हम वचन पढ़ें।
ना ही हम परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप करें, वो नहीं चाहता है। और इसी तरह से लोग आकर हमें बोलते हैं। हो सकता है आपने बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया होगा, लेकिन आगे से वो आकर कहेंगे, भाई आपके खुद के तो हालात बदल नहीं रहे, आपके खुद के तो घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या आप हमें बता रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, असली संदेश पर मैं आता हूं। प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस मोमेंट पे क्या किया वो समझेगा। 35 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मरकुस 5वां अध्याय 35 वचन से लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना किया। आप एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं? आप एक सामर्थी, एक पावरफुल क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं? उन जो मैंने लिखा है, मैंने जो टॉपिक लिखा है, 3 things, learn 3 things today. The first thing, start ignoring. Start ignoring. उन बातों को इग्नोर करना सीखिए जो शैतान आपसे कह रहा है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स आपके लिए कह रही हैं, जो वो गलत और नेगेटिव रिपोर्ट्स आपके लिए कह रही हैं। सर, तुम्हारे परिवार में सब लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। स्टॉप इग्नोरिंग, जस्ट कैंसल दोज वर्ड्स। इग्नोर नहीं। मैं विश्वास करती हूं कि मैं और मेरा पूरा घराना यीशु मसीह पे विश्वास करता है और वो उद्धार पाएगा। स्टार्ट इग्नोरिंग। यीशु ने उसकी बातों को सुना जरूर, सुना वो क्या कह रहे हैं, एंड ही जस्ट इग्नोर्ड। उसने अनसुना कर दिया उन लोगों की बातों को जो नेगेटिव बोल रहे थे, उन लोगों की बातों को जो डिस्करेजमेंट बोल रहे थे, उन लोगों की बातों को जो नीचा दिखाने को बोल रहे थे, उन लोगों की बातों को जो उनके विश्वास को तोड़ सकती थी, उन लोगों की बातों को जो आपको कमजोर करते हैं, जो आपको नीचा दे, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारा नहीं, लगता नहीं है कि तुम्हारा कुछ अच्छा होगा। स्टार्ट इग्नोरिंग। यीशु मसीह ने जस्ट इग्नोर किया। जैसे कहते हैं ना, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। एक परमेश्वर के दास हैं पास्टर गुरप्रीत, पंजाब में मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने एक बात कही कि लोग कहते हैं कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। नहीं, ऐसा कभी मत करिए। इस कान से सुनिए, इसी कान से निकाल दीजिए। इस कान तक आने का मौका मत दीजिए, क्योंकि बीच में दिमाग है, बीच में दिमाग है। यू नेवर नो कौन सी बात को पकड़ ले, यू नेवर नो। यहां से यहां तक आने का मौका ही मत दीजिए। यहां से सुनिए, यहीं से निकाल दीजिए। इग्नोर। शैतान तू क्या कह रहा है, मैं इग्नोर करता हूं उस बात को। तू मुझे कितना डिस्करेज करना चाहता है, मैं इग्नोर करता हूं उस बात को। तू मेरे विश्वास को कैसे तोड़ना चाहता है, मैं इग्नोर करता हूं उस बात को। आई जस्ट इग्नोर। मैं झाड़ लेता हूं अपने ऊपर से उस धूल को जो शैतान मेरे ऊपर डालने की कोशिश करता है। जस्ट इग्नोर, जस्ट चेक योरसेल्फ। नेट मेरे ऊपर नहीं रहेगी ये बात, मेरे ऊपर नहीं रहेगी बात। वो कहते हैं तेरी बेटी मर गई है, और यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया। अगर आप में से, मेरे में से कोई हो जो ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जहां पर हमको पता लगे कि जिसके घर में हम लोग जा रहे हैं उनके साथ ऐसा हो गया है, हम कहें अच्छा डेथ हो गई है, अरे यार अब क्या करेंगे। अच्छा, खुद को ही लगने लग जाएगा कि अब तो घर जाना बेकार है। अब तो मर ही गए हैं, क्या फायदा अब जाके। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उन बातों को इग्नोर कर दिया। स्टार्ट इग्नोरिंग द वर्ड्स ऑफ डेविल। स्टार्ट इग्नोरिंग द वर्ड्स ऑफ सैटन। वो आपके बारे में जो नेगेटिव शब्दों को बोलते हैं, तुम्हारा घर नहीं बनेगा, तुम कामयाब नहीं होगे, तुम फेल हो जाओगे लाइफ में,
स्टार्ट इग्नोरिंग। यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया उन बातों को। फिर दूसरी बात, मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह ने यायर का चेहरा देखा होगा। यायर आया तो बड़े विश्वास के साथ था, यार तू है ना, मेरे पैरों में गिर गया, बोला प्रभु चलो चलो जल्दी चलो, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, चलो प्लीज प्लीज चलो। अब क्या हो गया, इनकी बातों को सुनकर डिस्करेज हो गया। तो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत डर। पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को इग्नोर किया, अनसुना किया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यायर को बोला मत डर। ये पूरे विश्व में जो माहौल बनाया गया मौत का, इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात थी। वो बीमारी नहीं थी, वो था डर। Satan has created the fear among the people. लोगों के हृदय में, लोगों के मन में, लोगों के जीवन में एक ऐसे भय को, एक ऐसे डर को फिट किया गया, बार बार सुनाया गया, बार बार बोला गया, हर चैनल पे, हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर फियर को इंजेक्ट किया गया। जैसे एक इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, किसी को टीका लगाते हैं, उसमें इंजेक्ट किया जाए, इस तरह से इंजेक्ट किया गया है फियर को। आप बहुत विश्वास में चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आपके अंदर इंजेक्ट किया गया है। जानते कहां से? आपके कानों से इंजेक्ट किया गया आपके अंदर। आप उसको अनसुना नहीं कर पाए, इसलिए वो फियर अंदर आ गया। आपके देखने से, जब आप न्यूज देख रहे थे, अच्छा हमारे लखनऊ में इतने मौत हो गई, अच्छा इंडिया में इतने हो गए, अच्छा हमारे पड़ोस में भी निकल गया, अच्छा हम देख रहे थे। और फिर क्या कर रहे थे? फिर बोल रहे थे। फिर क्या कर रहे थे? बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अरे खांसी आ रही है, तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे यार मुझे ना रात को ऐसा लग रहा था, थोड़ा फीवर जैसा है ना, जैसे मुझे लग रहा है कहीं वो तो नहीं कहीं वो तो नहीं। हम अपने मुंह से बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, हम देख रहे थे, हम बोल रहे थे। मुझे लगता है हमारे महात्मा गांधी ने वो जो 3 बंदरों वाला सीन रखा था, वो इसीलिए, बुरा बोलो मत, बोलो मत, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत। इसीलिए इन बातों को अनसुना करना शुरू करिए। अगर आप डर पर ओवरकम करना चाहते हैं, इन बातों को अनसुना करना शुरू करिए। स्टार्ट इग्नोरिंग। बाइबल कहती है, 366 बार बाइबल में लिखा है मत डर। फॉर एवरी डे गॉड हैज गिवन दिस वर्ड, फियर नॉट। मत डरे, डरिए मत, घबराइए मत, मैं हूं। और मैं जानता हूं ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो बंदा उस परिस्थिति से गुजर रहा होता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हां, उन सब परिस्थितियों में आप विजयी होंगे, क्योंकि आप जानते नहीं कि आप किसको लेकर चल रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। जब परिस्थिति आपके हाथ से छूट जाएगी, वो संभाल लेगा। हालेलुया। मैं एक चीज दिखाता हूं, ये गाजर है, मैं भी खा रहा था। जब परिस्थिति आपके हाथ से छूट जाएगी, वो संभाल लेगा। उसके हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। डू नॉट बी अफ्रेड। यस, थैंक यू सर। घबराइए मत, डरिए मत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मत डर, घबराइए। तुम्हारा हृदय विचलित ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम घबराओ नहीं। उस फियर को अपने में इंजेक्ट होने मत दीजिए। फिर तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा 36 वर्ष में? मत डर, केवल विश्वास रख। तीसरी बात, हो सकता है आपने डर के बारे में
फेथ के बारे में बहुत बार सुना हो, आज थोड़ा सा सुन लीजिए। केवल विश्वास रख। ध्यान से समझिएगा इस बात को। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं विश्वास कर, यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वास रख। पवित्र बाइबल हमें विश्वास करने के बारे में नहीं बताती, पवित्र बाइबल हमें विश्वास रखने के बारे में सिखाती है। जानते प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि विश्वास रख। तू विश्वास करके मेरे पास आया था, लेकिन अब विश्वास को रख, उसे जाने मत दे। विश्वास करने में और विश्वास रखने में फर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 हिंदी में। तो आप सब, मेरे को लगता है सबको याद होगा, सबको रटा होगा ये। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, भैया वो लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि, है ना, जगत से ऐसा प्रेम किया। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप इस समय बुड़बुड़ा रहे हैं, आप इस समय इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं नहीं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम नहीं किया प्रियो। आप कहेंगे भैया ऐसा लिखा है, क्या गलत शिक्षा दे रहे हो आप? नहीं, मैं सही शिक्षा दे रहा हूं आपको। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि विश्वास क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वहां पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्रेम किया और प्रेम रखने में बहुत फर्क है प्रियो। हालेलुया। लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, फिर कहते हैं आई लव यू सो मच, फिर शादी करते हैं, उसके बाद डाइवोर्स करते हैं, जूते मारते हैं अपनी पत्नियों को, और पत्नियां भी सताती हैं, यू नो, प्रताड़ित करते हैं। वो प्रेम कहां गया? जो कहते थे प्रेम, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, कहां गया वो सब? चला गया। परमेश्वर हमें यह नहीं कहता प्रियो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास को रखें। ये सारी परिस्थिति जो भी विश्व भर में चल रही है, या हो सकता है आने वाले समय में और भी कठिन परिस्थितियों को आप देखें, लेकिन इन सब बातों में विश्वास रखें, क्योंकि हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मेरा भाई है यहां पर, एक मेरा फ्रेंड पवन, मैं जानता हूं मेरे दोस्त को, उज्जैन से है, हम बॉम्बे में एक साथ रहे हैं। हाय पवन। और मुझे खुशी है कि आप यहां पे हैं पवन आज। मैं ये भाई मुझे जानते हैं, और मैं जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में धक्के खा रहा था, एक्चुअल में धक्के खा रहे थे, और आज भी जितने वहां पर हैं वो धक्के ही खा रहे हैं, वहां पे कुछ कर नहीं रहे हैं। उनको लगता है अंदर से ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। नहीं तो लोगों को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनको लगता है कि उनकी लाइफ सेटल हो गई है तो उनको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनको लगता कि वो वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पर वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, तो उनको ये सुसाइड कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बॉम्बे में रहता था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सी तकलीफों को, बहुत सी परेशानियों को देख रहा था, लेकिन मेरे जीवन में एक समय आया 17 मार्च 2012, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज मेरे कानों से सुनी। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं। जिस घड़ी मैंने उनकी आवाज को सुना और मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, मैं विश्वास करके यीशु के पास आया, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं उस विश्वास को रखूं। कब तक? अपने जीवन के अंत तक उस विश्वास को रखूं। जानते क्यों? क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, everyone those are watching me right now, I want to tell you, for you, Pawan, for you, Jesus has given his life.
उसने आपके लिए अपने जीवन को कुर्बान किया मेरे भाई। उसने अपने जीवन को कुर्बान किया है उस कल्वरी क्रूस पर। इसलिए नहीं कि वो एक नए धर्म को लेकर आए, इसलिए नहीं वो किसी हिंदू या मुस्लिम या किसी दूसरे व्यक्ति को ईसाई बनाए, नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर के प्रेम को आप तक पहुंचा सके, कि जिस घड़ी आप उस पर विश्वास करें आप उस नरक की आग से बच जाएं। जिस घड़ी आप उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, उस समय परमेश्वर आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख दे। इसलिए उसने अपने जीवन को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किया। माय बिलवर्ड, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्टार्ट इग्नोरिंग द वर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। स्टार्ट इग्नोरिंग उन बातों को जो दिन भर में आप सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा लूका उसके 10वें अध्याय में कि उस जिस भी गांव में जाओ, जिस भी जगह में जाओ, है ना, जब वहां के लोग तुम पर विश्वास ना करें तो क्या करो, वहां से निकलते समय अपने पैरों की धूल को झाड़ दो। जब लोग आपके बारे में कुछ बातों को बोलते हैं, उस धूल को झाड़ दीजिए अपने ऊपर से। जब डॉक्टर्स आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा है, इस रिपोर्ट में ऐसा है, आपका जीवन इतना है, उतना है, ये बीमारी आपको है, इस सब धूल को झाड़ दीजिए अपने ऊपर से और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए कि मैं यीशु मसीह आप पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं आप मेरा भला ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर अल्टीमेटली आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। परमेश्वर आपका नुकसान नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप कुछ सीख पा रहे हैं? 3 चीजें। पहली, स्टार्ट इग्नोरिंग द वर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की, इस समाज की, स्पेशली न्यूज चैनल्स की, लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू करिए। और दूसरी ओर इस पवित्र वचन की, इस पवित्र बाइबल की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू करिए। इसको पढ़ना शुरू करिए, इसको सीखना शुरू करिए। समझिए कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर इस किताब में धर्मों के बारे में नहीं बोलता है। लोग बोलते हैं आपको पैसा मिला होगा, आपको पैसा मिला होगा धर्म बदलने के लिए। वाओ, कितना ओके। इस बात को अगर हम लें कि कोई किसी को ईसाई बनने के लिए या कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए पैसा देता है, तो कोई आपको 1 लाख, 10,000, 50,000, 2 लाख, जितना भी देकर आपको एक धर्म से दूसरे धर्म में ले जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा। फिर आप ढूंढेंगे किसी नए धर्म को। फिर कोई आएगा, फिर आपको कुछ पैसा देगा, फिर आप एक नए धर्म में चले जाएंगे। आप सारी जिंदगी पैसे ले लेके धर्म बदलते रहेंगे। किसी ने आपको 10,000 देके ईसाई बनाया, कोई 20,000 देके मुस्लिम बनाएगा, कोई 30,000 देके कोई और दूसरे धर्म में ले जाएगा, फिर कोई 50,000 देके कोई दूसरे धर्म में ले जाएगा। हर कोई पैसा दे दे के आपको धर्म बदलता रहेगा। आपकी लाइफ ऐसे चलेगी? नहीं, ये बेवकूफी की बातें हैं। लोग बोलते हैं आपने धर्म बदल दिया। वाओ, मैं 20 से 25 सिगरेट पीता था रोज, मैं रोज शराब पीता था, मेरा रोज का जीवन व्यभिचार, होमोसेक्सुअलिटी और बुरे कामों में रहा। लेकिन अगर लोग बोलते कि मैंने धर्म बदला, आज मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलती, आज मैं सिगरेट नहीं पीता, 8.5 साल हो गए सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। क्या यह धर्म बदलना है? जी नहीं प्रियो। परमेश्वर आपके मन को बदलता है। परमेश्वर आपके हृदय में, आपके विचारों में काम करता है, आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। वो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाता है, वो आपको नरक से स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आपको सिर्फ उस पर विश्वास रखना है, उसको पकड़े रहना है। क्लिंग ऑन टू जीसस स्ट्रांगली।
टाइटली विथ फेथ। यू नो, 3 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूं। दुनिया की, समाज की, इधर उधर की फालतू बातों को इग्नोर करना शुरू करिए। दूसरा, डरना बंद करिए। डू नॉट बी अफ्रेड। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो परमेश्वर को नहीं पता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो परमेश्वर कहे कि अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कब हुआ यार ये? अच्छा, कोरोना वायरस आ गया क्या, मुझे पता नहीं लगा। नहीं, परमेश्वर के सामने ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानते। फिर तीसरी चीज, विश्वास रखिए। जब कोई कठिनाई, परेशानियां, तकलीफें, स्ट्रगल्स आती हैं, उनमें विश्वास रखिए, क्योंकि आप जिसको लेकर चल रहे हैं वो यीशु मसीह नासरी है। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंच गए जहां पर याईर की बेटी मरी हुई पड़ी थी। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो लोग वहां पर रो रहे थे। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं कुछ मूर्खों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कुछ मूर्ख, बेवकूफ पाए जाते हैं। वो मूर्ख जो है वो उस जब वो लड़की मर गई थी वो रो रहे थे वहां पर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लड़की मरी नहीं है लेकिन सो रही है, तो जानते हो उसने क्या करना शुरू किया? वो हंसने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये क्या बात बोल रहा है? ये तो मर गई है। पहले वो रो रहे थे और फिर वो हंस रहे थे। और जानते यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, इनको यहां से बाहर करो, पहले इनको इस घर से निकालो पहले बाहर। और उन सबको बाहर निकाला। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो रो रहे थे, जब वो घर के अंदर बैठ के रो रहे थे, तो बाहर जो चमत्कार हो रहे थे, ध्यान से समझिएगा, वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो बाहर चंगी हो रही थी, लेकिन ये अंदर बैठ के रो रहे थे। ये वो चमत्कार नहीं देख सके। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अंदर गया, ये वहां पर हंसने लगे और यीशु मसीह ने इनको बाहर कर दिया। ये जो अंदर चमत्कार हुआ, ये वो भी नहीं देख सके। मैं आपको एक बात बताऊं, जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, जो परमेश्वर को छोटा आंकते हैं, जो परमेश्वर को मूर्ख समझते हैं, जो सोचते हैं कि कौन सा गॉड, कौन सा परमेश्वर, वो तो धर्म बदलते, वो कभी भी परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। वो लोग जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते, वो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाइयों को नहीं देख पाते। लेकिन याईर के समान जो यीशु को साथ लेकर चलते हैं, यीशु मसीह को साथ लेकर चलते हैं, कि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यीशु मसीह, मैं लेकर चलूंगा। मैं जानता हूं उधर मेरी बेटी मर गई है, लोगों ने मुझे बताया, लेकिन फिर भी चलना, प्लीज चलना, चलना। मैं जानता हूं मेरी रिपोर्ट में ये आया, फिर भी तू मेरे साथ रहना प्रभु यीशु मसीह। यू विल सी द मिरेकल 110%, आई कैन गिव यू द गारंटी। हालेलुया, हालेलुया टू एवरीवन दोज आर वाचिंग राइट नाउ। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत तक बने जो रहेगा वो उद्धार पाएगा। यहां पर मैं देखता हूं कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। कभी यहां पे नंबर बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी। लेकिन इन सब बातों में जो एंड तक बना रहेगा, ये एंड की प्रेयर उनके लिए है जो एंड तक बना रहे। जो इस समय तक बने हुए हैं। हो सकता है बीच में से आए हो, लेकिन ये प्रेयर आपके लिए है जो मैं करने जा रहा हूं अभी आपके लिए। यू नो, अपने आप को जांच लीजिए। आप उन लोगों की गिनती में अपने आप को मत लेकर आइए जो मूर्ख हैं, जो ना तो बाहर के चमत्कार को देख सके कि वो स्त्री चंगी हुई, और ना अंदर के चमत्कार को देख सके जो वो स्त्री, वो बच्ची मुर्दों में से जी उठी। हालेलुया। लेकिन आप याईर के समान बनिए। पहला काम करिए, दुनिया की बातों को इग्नोर करिए। दूसरी चीज, डरिए मत। तीसरी चीज, विश्वास रखिए। विश्वास करिए ही मत। बहुत से लोग कहते हैं विश्वास तो हम बहुत करते हैं, विश्वास, अरे विश्वास तो बहुत करते हैं। नहीं, यीशु मसीह कहते हैं विश्वास रख,
विश्वास कर मत, विश्वास रख। करता है ना, अब विश्वास रख, इसमें बना रहे। हालेलुया। अपने आप की गिनती मूर्खों में मत करिए, विश्वासियों में रखिए। यीशु को साथ लेकर चलिए, जहां कहीं भी जाएं यीशु को साथ लेके जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दीदी हैं यहाँ पर, शिल्पा दीदी। प्रेज द लॉर्ड दीदी। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आज तक आपने हम सबको संभाला है और परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पे बना है। पिता हम थैंक यू बोलते हैं पिता इस समय के लिए। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने हम सबसे बात करी है और यीशु मसीह में आपके नाम से आता हूं प्रभु। Lord, I come in your name, O Lord Jesus, by the blood of Jesus, by the mighty and strongest name, the greatest name ever, the name of Lord Jesus Christ. I come in Jesus' name, O God. Our Father, I come before you in the name of Jesus, O God. In Jesus' mighty name, O Lord, I pray for my dear brother, Mani Kumar Anna. In Jesus' name, I rebuke every symptom, every sickness of corona. In Jesus' name, I rebuke you and I speak complete healing over him, O God. In Jesus' name, O God, I speak healing over Didi, O Lord, over family, O God, and those are watching right now. You can write down your prayer. You can write down your prayer. We will pray for you. आप चाहें तो अपना प्रेयर का रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और मैं इस समय कुछ समय 5-7 मिनट लेकर आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, यहां पर मौजूद हर एक भाई बहन को जिसके कहीं पर भी दर्द है, किसी भी लिगामेंट में, कमर में और थाई में या फिर लेग में, अगर कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिकनेस है, यीशु मसीह के नाम से मैं सारे दर्द को, सारे सिकनेस को, सारी डिजीज को यीशु के नाम से रिब्यूक करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं आपकी हीलिंग को, आपकी चंगाई को प्रभु मैं रिलीज करता हूं। परमेश्वर आप छू के चंगा करें प्रभु यीशु मसीह, आप छू के चंगा करें। अगर किसी की हड्डी टूटी है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु मैं आपकी चंगाई को रिलीज करता हूं प्रभु। लॉर्ड वी आस्क फॉर न्यू बोन ओ गॉड, लॉर्ड वी आस्क फॉर न्यू लिगामेंट ओ गॉड, लॉर्ड वी आस्क फॉर न्यू लेग ओ गॉड। इन जीसस नेम ओ गॉड वी स्पीक न्यू बोन्स इन जीसस नेम ओ गॉड। वी ब्लेस देम इन जीसस नेम ओ गॉड। ओ प्रभु, अगर कोई भी जन है जो किसी भी फाइनेंशियल या किसी भी स्ट्रगल से होकर गुजर रहा है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप प्रभु उनको प्रोविजंस करें, आप प्रोवाइड करें प्रभु जी, आप उनके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ को दिखाएं परमेश्वर। लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी ब्लेस योर नेम ओ लॉर्ड, वी ब्लेस ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोज आर वाचिंग राइट नाउ इन जीसस नेम ओ गॉड, इन जीसस नेम ओ गॉड। लॉर्ड वी प्रे फॉर सिस्टर ज्योति जॉन, लॉर्ड इन जीसस नेम ओ गॉड, जो भी उनका गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, यीशु नाजरत के नाम से प्रभु मैं आपकी रिकवरी को, आपकी हीलिंग टच को इस समय बोलता हूं प्रभु। आपके पवित्र लहू को लगाता हूं परमेश्वर। इसी समय दीदी पूरी तरह से रिकवर करने पाए परमेश्वर, वो फिजिकल स्ट्रेंथ आने पाए प्रभु। लॉर्ड आई आस्क फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। लॉर्ड वी स्पीक कंप्लीट रिकवरी इन जीसस नेम ऑफ गॉड, इन जीसस नेम ऑफ गॉड। और प्रभु उनको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। इन जीसस नेम ओ लॉर्ड वी प्रे फॉर सिस्टर शीतल ओ गॉड, फॉर हर मैरिज ओ गॉड, इन जीसस नेम ओ गॉड। Lord, we pray you will bring the right person for her life, oh God. In Jesus' name, oh God. Who is the one who is suitable for her life, oh God. In Jesus' mighty name, oh God. We speak, we call out that person, oh God, wherever you are. Come in Jesus' name, in Jesus' name, oh God. At the right time, she may got married with the right person, oh God. We bless her life. We bless her life in Jesus' name. And Lord, we bless everyone, those who are watching right now. Everyone, those who are watching, if they are struggling with any sickness, oh God. Sister Vandana, मेरे नानी के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ओके, हम सिस्टर वंदना सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी नानी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। इन द नेम ऑफ जीसस ओ गॉड, लॉर्ड वी प्रे इन जीसस नेम ओ गॉड फॉर सिस्टर वंदना's नानी ओ गॉड। लॉर्ड आई ब्लेस हर विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ओ गॉड। इन जीसस नेम ओ गॉड आई ब्रेक एवरी सिकनेस, एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सिकनेस इन जीसस नेम। आई ब्रेक डाउन इन जीसस नेम ओ गॉड, बाय द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस ओ गॉड। एंड लॉर्ड आई स्पीक कंप्लीट हीलिंग,
कंप्लीट हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम ओ गॉड। और प्रभु हम यीशु के नाम से उनके ब्रीदिंग सिस्टम को, उनके लंग्स को, उनकी ब्रीदिंग पाइप्स को ब्लेस करते हैं यीशु नाजरत के नाम से। और आज से प्रभु वो बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ करने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, इन जीसस नेम ओ गॉड। एवरीवन दोज आर वाचिंग एंड दोज हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो गॉड, जिन्होंने पहले भी देखा और जो इसके बाद भी देखेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन को ब्लेस करता हूं। होने दे प्रभु, तेरी सामर्थी हाथ, तेरा सामर्थ तेरे हाथों से इनके जीवन में प्रकट हो और तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। हम सिस्टर निवेदिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके बॉडी पेन के लिए। कल उनके बेबी हुआ है और आज हम उनकी बॉडी के जो भी एक है, जो भी पेन है, जो भी स्ट्रगल है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड वी प्रे फॉर आवर डियर सिस्टर निवेदिता इन जीसस नेम ओ गॉड। वी ब्लेस हर बेबी इन जीसस नेम ओ गॉड। वी ब्लेस हर हस्बैंड एंड डॉटर ओ गॉड इन जीसस माइटी नेम ओ लॉर्ड। एंड लॉर्ड वी स्पीक कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट हीलिंग ओ गॉड। हर एक जो बोन है, हर एक जो स्ट्रक्चर है, हर एक जो नस है, जो भी स्टिचेस लगे हैं, सबके ऊपर हम आपकी रिकवरी को मांगते प्रभु। सारा पेन, सारा बॉडी पेन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए प्रभु। और परमेश्वर मैं आपकी चंगाई को बहन के ऊपर बोलता हूं। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। Please pray for my married life. Already married since 4 years, but now staying together. Okay. Thank you, Sheetal sister. Lord, we pray. We are already praying for dear sister, oh God. प्रभु हम यही चाहते प्रभु कि उनका आने वाला भविष्य, उनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा होने पाए। हम ब्रदर सैम को भी याद करते हैं प्रभु, हम उनके भी जीवन को ब्लेस करते हैं प्रभु। उनका भी जो विवाह होता है प्रभु, उनका भी विवाहित जीवन बहुत अच्छा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम बहन के मम्मी पापा को और बाकी लोगों को भी ब्लेस करते हैं प्रभु। Lord, we bless everyone, those are in their family, oh God. Everyone, in their parents, their relatives, oh God, we bless them. We bless them in your salvation, oh God. Thank you, Father, for this beautiful time, oh God. Thank you for you have given this opportunity to come and share your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को। 3 चीजें। Ignore the worldly words, the word of this world. Second, fear not, do not be afraid. तीसरी चीज, have faith, विश्वास रखिए, विश्वास करिए मत, विश्वास रखिए। Amen. May God bless you. Jesus loves you, we loves you, and we will pray for you. God bless you. जय मसीह की।